So today our title is Country is Drifting Towards Electoral Autocracy that is said by Congress. That means देश चुनावी तानाशाही यानी कि ऑटोक्रेसी स्वेच्छाचारिता यानी कि अपनी मन मर्जी की ओर बढ़ रहा है, ऐसे कांग्रेस ने कहा है. So hey everyone, welcome back to Neeraj Leta Curious Mind. Hoping you all are doing well, fantastic in your life. Now let's talk about our news article with some vocabulary, some phrases, some idioms, some way forward, some key takeaway, and also I also include some conclusion. So हम इस पूरे न्यूज आर्टिकल को समझने की कोशिश करेंगे. कैसे? विद vocabulary. So without any delay, let's start it. Okay. So our first vocabulary would be drifting. That means moving slowly in a particular direction, often without control. धीरे धीरे किसी दिशा में बढ़ना, बह जाना. That is called drifting. So synonyms would be moving, sliding, and antonyms would be establishing and stopping. Okay, and the sentence would be the country is drifting toward political uncertainty. That means देश धीरे धीरे राजनीतिक अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है. And the next is electoral. Electoral means related to elections or voting. That is called चुनावी संबंधी. उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे electoral. And synonyms would be voting, political, and antonyms would be non-political. And how could you make sentence with this electoral? So electoral reforms can strengthen democracy. चुनावी सुधार लोकतंत्र को मजबूत बना सकते हैं. And the next vocabulary is autocracy. Autocracy means a system where one person or a small group holds absolute power. निरंकुश शासन या फिर स्वेच्छाचारी शासन. मतलब कि किसी भी एक ही इंसान का पूरा दबदबा रहता है किसी भी सिस्टम पे, उसे हम बोल सकते हैं autocracy. So synonyms would be dictatorship or authoritarian rule, and antonyms would be democracy. So how could you make sentence with this autocracy? So citizens should understand the difference between democracy and autocracy. नागरिकों को लोकतंत्र और निरंकुश शासन के बीच का अंतर समझना चाहिए. Now let's talk about our next vocabulary, that is subverting. Subverting means undermining or weakening an established system. कमजोर करना, उलटने का प्रयास करना, that is called subverting. So synonyms would be undermining, weaken, and antonyms would be strengthen. So how could you make sentence with subverting? So the report accused मतलब कि आरोप लगाना officials of subverting institutions. रिपोर्ट में अधिकारियों पर संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया गया. And the next is democratic institutions. That means organizations that protect democracy and constitutional values. ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रोटेक्ट करता है डेमोक्रेसी यानी कि लोकतांत्रिक संस्थाएं और कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज को, that is called democratic institutions. Sentence would be strong democratic institutions ensure accountability. मजबूत लोकतांत्रिक संस्थाएं जवाबदेही सुनिश्चित करती हैं. And the next vocabulary is conveyance. Conveyance means secret cooperation in wrongdoing. मिली भगत को हम लोग बोल सकते हैं conveyance. And synonyms would be collusions and conspiracy, and antonyms would be honesty. And sentence would be the investigation looked into alleged connivance between officials. जांच में अधिकारियों की कथित मिली भगत की जांच की गई. And the next is alleging. Alleging means accused मतलब कि आरोप लगाना. So claiming भी कह सकते हैं. Claiming something without it proving it. आरोप लगाना, accuse, claiming करना, that is called alleging without it proving it. it मतलब कि अभी तक जो प्रूफ नहीं हुआ है उस पर हम जब क्लेम करते हैं, that is called alleging, आरोप लगाना. Antonyms would be confirming. नहीं, confirm हो चुका है और यहाँ भी ये confirm नहीं है. और how could you make sentence with this? So the party alleged
अनफेयर ट्रीटमेंट, पार्टी ने अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। बेसिकली यही हुआ है कि मध्य प्रदेश में एक है जो क्या बोलते हैं, कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन करने गई थी, उनको रिजेक्ट कर दिया गया उनका नॉमिनेशन। तो इसलिए ये कहा जा रहा है कि पार्टी ने अनुचित यानी कि अनफेयर ट्रीटमेंट किया है, यानी कि बीजेपी ने। सो नेक्स्ट हमारा वोकैबुलरी इज नॉमिनेशन। सो ऑफिशियल सिलेक्शन और प्रपोजल फॉर अ पोजीशंस, नामांकन के लिए हम बोल सकते हैं नॉमिनेशन। सो हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? शो हर नॉमिनेशन वाज सबमिटेड ऑन टाइम, उनका नामांकन समय पर जमा किया गया। हाँ, तो यहाँ पे बताती हूँ कि वो जो लेडीज थी उनका समय पे ही नॉमिनेशन हुआ था, हर कुछ समय पर हुआ था, उसके बावजूद भी दे जस्ट रिजेक्टेड हर नॉमिनेशन। यही इस न्यूज आर्टिकल में बात की गई है और इसलिए कांग्रेस पूरे बौखलाए हुए हैं कि ऐसे बीजेपी क्यों कर रहा है। एंड द नेक्स्ट इज स्क्रूटनी। स्क्रूटनी एज वी नो अब ये हमारे लिए ओल्ड हो चुका है, राइट? केयरफुली एग्जामिनेशन, गहन जांच को बोलते हैं स्क्रूटनी। ओके, सिनोनिम्स वुड बी इंस्पेक्शंस या फिर एग्जामिनेशन एंड एंटोनिम्स वुड बी नेग्लेक्ट। ओके, एंड हाउ कुड यू मेक सेंटेंस विद दिस? सो एवरी एप्लीकेशन गोज थ्रू स्क्रूटनी, वही बोला जा रहा है कि प्रत्येक आवेदन की गहन जांच होती है। नाउ नेक्स्ट वोकैबुलरी इज defection. Defection means dal badal, leaving one political party to join another. That is called defection. That means dal badal. Sentence should be anti-defection laws discourage political switching. दल बदल विरोधी कानून राजनीतिक बदलाव को हतोत्साहित करते हैं. Okay, and the next vocabulary is legislative oversight. That means monitoring गवर्नमेंट एक्शन बाय लॉ मेकर्स. सो लेजिस्लेटिव मतलब हम लोग समझते हैं क्या, लॉ मेकर्स, विधायी, और ओवरसाइट मतलब होता है कि मॉनिटरिंग करना यानी कि निगरानी करना. सो सेंटेंस शुड बी लेजिस्लेटिव ओवरसाइट स्ट्रेंथेंस अकाउंटेबिलिटी, विधायी निगरानी जवाबदेही को मजबूत करती है. एंड द नेक्स्ट वोकैबुलरी इज कॉग्निजेंस. कॉग्निजेंस मीन्स फॉर्मल रिकॉग्निशन और लीगल नोटिस बाय अ कोर्ट. संज्ञान लेना किसी भी चीज के, उसे हम लोग बोल सकते हैं कॉग्निजेंस. सो सेंटेंस वुड बी द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस ऑफ द कंप्लेंट. अदालत ने शिकायत पर संज्ञान लिया, सोचा कि हाँ क्या करेंगे. ठीक है, रिकॉग्निशन, formal recognition. So here is some good word for you. Strong institutions, fair elections and active citizens are the pillar of true democracy. Alright, now let's talk about our phrases idiom in this article. From this article, so the first phrase is electoral autocracy, a system where elections exist but democratic values वीकेंड. कहा जा रहा है कि एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे इलेक्शन तो होता है, एग्जिट करता है, लेकिन जो डेमोक्रेटिक वैल्यू होती है, जो जनता द्वारा चुना जाता है, वो वैल्यू कमजोर होती है. दैट इज कॉल्ड इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, चुनावी निरंकुशता. सेंटेंस वुड बी सम एक्सपर्ट्स वार्न अगेंस्ट इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी. कुछ विशेषज्ञ चुनावी निरंकुशता के प्रति चेतावनी देते हैं. Next phrase is democratic decline. That means weakening of democratic principles. लोकतांत्रिक गिरावट को बोल सकते हैं democratic decline. Sentence should be democratic decline concern many citizens. लोकतांत्रिक गिरावट कई नागरिकों की चिंता है. The next phrase is constitutional model. That means governance based on constitutional principles. जो भी governance बनती है वो संवैधानिक प्रिंसिपल से बनती है, उसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल, संवैधानिक मॉडल. सो सेंटेंस शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल प्रोटेक्ट्स सिटीजन्स राइट. संवैधानिक मॉडल नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है. नाउ इसी हाथे हम इस इडियम को भी देख लेते हैं. वॉक अ टाइट रॉप. वॉक अ टाइट रॉप मीन्स हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन केयरफुली. कठिन परिस्थितियों को बहुत सावधानी से संभालना. दैट इज कॉल्ड वॉक अ टाइट रॉप. And the next is hold your ground. That means refuse to give up your position. अपने रुख पर खड़े रहना. Hold your ground. That is called refuse to give up your decision. कि आप रिफ्यूज कर दिए कि हम गिव अप करेंगे, आप तो वहाँ पे खड़े रहेंगे. And the next is draw the line means set a clear limit. सीमा तय करना. Draw the line. And the next is on thin ice. That means in a very risky situation. जोखिम भरी स्थिति में होना. That is called
ऑन थीन आइस, पतले आइस पे हैं, बिछड़ के गिर जाएंगे, यानी कि रिस्की सिचुएशन है। कीप द बॉल रोलिंग, दैट मीन्स कंटिन्यू मेकिंग प्रोग्रेस, अपना प्रोग्रेस हमेशा बढ़ाते रहो। कीप द बॉल रोलिंग, आपका बॉल रोलिंग में चलना चाहिए, काम को लगातार आगे बढ़ते रहना। ओके, यहाँ पे हमारा 2 और फ्रेज बच गया है। पॉलिटिकल गेन, दैट मीन्स एडवांटेज अचीव्ड थ्रू पॉलिटिक्स, राजनीतिक लाभ को बोलते हैं गेन, मतलब लाभ यहाँ पे पॉलिटिकल गेन। सो सेंटेंस शुड बी लीडर्स शुड प्रायोरिटाइज पब्लिक वेलफेयर ओवर पॉलिटिकल गेन, नेताओं को राजनीतिक लाभ से पहले जनहित को प्राथमिक देनी चाहिए। लीडर्स शुड प्रायोरिटाइज पब्लिक वेलफेयर ओवर पॉलिटिकल गेन। एंड द नेक्स्ट इज रूल ऑफ लॉ, एज वी नो, कानून का शासन, एवरीवन is governed by the law equality. Sentence should be rule of the law is essential for democracy. कानून का शासन लोकतंत्र के लिए आवश्यक है. Alright, now let's talk about our powerful discussion and essay line. Okay, so democracy becomes stronger when institutions remain transparent and accountable. जब संस्थाएं पारदर्शी और जवाबदेह रहती हैं, तब लोकतंत्र और मजबूत होता है. And the next is healthy debate is a sign of a vibrant democracy. स्वस्थ बहस एक जीवंत लोकतंत्र, जीवंत को क्या बोल सकते हैं? Vibrant. Okay, क्या है ये? पहचान है. And the next is the constitution provides the framework but citizens protect its spirit. संविधान ढांचा देता है लेकिन उसकी भावना की रक्षा नागरिक करते हैं. The constitution provides the framework, everything, okay, but citizens protect its spirit. but हमारे सिटीजन्स को उसकी संभावना को उसकी भावना को रक्षा करने हैं. ऑल राइट, और हाँ, आज का हमने सोचा कि सिरिगेशन के साथ पढ़ने से अच्छा है कि मैं इसी में की टेक वे, अच्छी बातें, वे फॉरवर्ड, मतलब कि आगे का सोल्यूशन क्या होना चाहिए, और सम कुछ मेन कंक्लूजन अबाउट दिस न्यूज होल आर्टिकल मैंने आज डाला है. सो फॉर दैट नो वरीज, आज हम देख के ही पढ़ेंगे विदाउट एनी डिले. सो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि इसका पूरा कंक्लूजन क्या होगा. सो the article presents political allegations and concerns regarding electoral practices and democratic institutions. It reflects the ongoing debate over governance, constitutional values, and accountability. Regardless of political viewpoints, the long-term strength of a democracy depends on transparency, fair election, independent institutions and public trust. यह लेख चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर लगाए गए राजनीतिक आरोपों और चिंताओं को प्रस्तुत करता है. यह शासन, संवैधानिक मूल्यों और जवाबदेही पर चल रही बहस को दर्शाता है. किसी भी लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी, निष्पक्ष चुनाव, फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र संस्थाओं यानी कि इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस और जनता के विश्वास पे यानी कि पब्लिक ट्रस्ट पर निर्भर करती है. Now let's talk about some key takeaway, अच्छी बातें from this news. So democracy works best when institutions remain independent. लोकतंत्र तब सबसे बेहतर काम करता है जब संस्थाएं स्वतंत्र हो रहे. नेक्स्ट, फेयर इलेक्शन बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस. निष्पक्ष चुनाव जनता का विश्वास बढ़ाते हैं. फेयर इलेक्शन बिल्ड पब्लिक कॉन्फिडेंस. नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी स्ट्रेंथन गवर्नेंस. पारदर्शिता और जवाबदेही शासन को मजबूत बनाती है. And the next is citizens should stay informed and participate responsibly. नागरिकों को जागरूक रहकर जिम्मेदारी से भाग लेना चाहिए. Citizens should stay informed and participate responsibly. Now let's talk about some way forward. So strengthen the independence of constitutional institutions. Ensure transparent and impartial election procedures. संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को और मजबूत किया जाए एंड चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए. Okay, ensure transparent and impartial election procedures. And the next is improve public awareness about democratic rights and responsibilities. Promote constructive dialogue among political stakeholders. नागरिक में लोकतांत्रिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाई जाए. राजनीतिक पक्षों के बीच रचनात्मक संवाद को बढ़ावा दिया जाए. राजनीतिक पक्ष को हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स. ठीक है. एंड द नेक्स्ट लास्ट, एनकरेज लीगल रिफॉर्म्स दैट इनहेंस अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रस्ट.
जवाबदेही और विश्वास बढ़ाने वाले कानून सुधार लागू किया जाए. Encourage legal reforms that enhance accountability and trust. Now let's talk about our practice sentence planning style. How could you sentence? How could you make sentence with this, and how could you understand? So, a strong democracy requires transparent institutions and active citizens' participation. मजबूत लोकतंत्र के लिए पारदर्शी संस्थाएं और सक्रिय नागरिक भागीदारी आवश्यक है. मैं अब हिंदी पढ़ लेती हूँ फिर इंग्लिश. अब नेक्स्ट हमारा 2 नंबर है. संवैधानिक मूल्यों का सम्मान दीर्घकालिक जन विश्वास बनाता है. Respect for constitutional values helps build long-term public strong. And the next, रचनात्मक संवाद टकराव की तुलना में बेहतर समाधान प्रदान करता है. Constructive dialogue यानी कि संवाद can resolve conflicts more effectively than confrontation. And the next is स्वतंत्र संस्थाएं जवाबदेह शासन की रीढ़ होती है. Independent institutions are the backbone of accountable governance. Okay, I hope it's clear now. The whole news article is all about like कि कांग्रेस एलिगेशन यानी कि accused कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि जो बीजेपी है वो हर जगह ऐसे काम कर रही है कि मतलब ऑटोक्रेसी के जैसे कि उनको जो इच्छा है वही कर रही हैं. जैसे ही मध्य प्रदेश की जो लेडीज को नॉमिनेशन में रिजेक्शन मिला. तो ओवरऑल इसी चीज़ पे बात किया गया है कि हमें ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए. जैसे कि हम सब जानते हैं लाइक एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हमें कॉन्स्टिट्यूशनल फॉलो करना चाहिए, पर उन्होंने कहा कि ये मोदी मॉडल है, कॉन्स्टिट्यूशनल मॉडल नहीं है. तो यही सब बातें की गई है इस न्यूज़ आर्टिकल में. तो हम आई होप कि आपको वोकैबुलरी, इडियम, फ्रेज क्लियर होता है और आप उसको नोट भी करते हैं. सो ओके, अगर इफ़ यू रियली लाइक इट एंड इफ़ यू आर watching this video, so please do comment to encourage me to provide you this kinds of video. Till then, bye. Be happy, be healthy in your life. Stay tuned here.